See, in this chapter, we are going to study the plant tissues and animal tissues, right? तो सभी बच्चों हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यस एग्जैक्टली कैसे इन चीज़ों को हमें स्टडी करना है. प्लांट टिश्यूज हमने स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम. एनिमल टिश्यू भी एक आध क्लास में स्टार्ट करेंगे. तो प्लांट टिश्यूज में आगे मूव करते हुए हम कुछ चीज़ों को और स्टडी करेंगे. व्हाट आर दीस? सी हियर. तो लास्ट टाइम आपने क्या देखा था? लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द different type of plant tissues. Now we are moving ahead and we are starting in this session the permanent tissues, right? What are the permanent tissues? Because last time we have discussed about the your meristematic tissues, that's all these things, those cells, those tissues which are made up of those kind of cells which have simple, which have ability to divide. But once these cells lost the power of division, once these cells lost the power of division, they become permanent. They are specialized to perform a specific function. That means they are differentiated. What is the meaning of differentiation here? The meaning of differentiation is if the cells are specialized or tissues which are forming of special cells are specialized to perform a particular function, one thing, and mostly they lost the power of division and they become permanent. So in this session we are going to study about the permanent tissue, right? And okay, so chalo sabse pehle number 1 on the basis of function, right? Because we know the permanent tissue are specialized tissue, they are different tissue, they will perform a specific function. So on the basis of function we can categorize permanent tissues into 3 categories. What are these 3 categories? We'll discuss one by one. First of all, number 1 is your simple tissue, right? Simple tissue are generally what they are the supporting tissue. Remember, all permanent tissue in which we are studying, number 1 is your simple tissue and they are also called as supporting tissue, right? Because as one thing they are simple. Simple means they are made up of same kind of cells. They are made up of same kind of cells. अगर वो same kind of cells बने हैं and they are become permanent, they will form permanent tissue. So see how it happened. Exactly what happened there. Supporting tissues are mainly 3 important types. What are these 3 types of supporting tissues? First of all is your parenchyma. First of all is your parenchyma. You have heard about the parenchyma, right? काफी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, सुना होगा वर्ड parenchyma पिछली क्लासेस के अंदर. तो यहाँ पर भी हम ये समझ सकते हैं, we can very easily understand the what are the parenchyma tissue, because as we know that the parenchyma is tissue is exactly made up of parenchymatous cell. They are made up of parenchymatous cell. So how if we find to analyze what are the shape of these cells? So very simple, very simple. See here we have diagram here. These are the cells which are forming your parenchymatous tissue, right? These are spherical ovoid shell, you can see. These are spherical ovoid cells are here like this. This is the diagram of your parenchyma, right? Inside each cell we have cytoplasm. So inside the cell wall we have different dot-like structure we can show here. This is your cytoplasm. Inside cytoplasm we have very dense body which is shown here. This is known as your nucleus. So see here, this portion is your nucleus in this cell. Here in this cell this portion is nucleus. Here in this cell this is the nucleus, and here in this cell is the nucleus. So every cell, every parenchymatous cell have a nucleus which is present inside the cell. Now you can understand here, yes, the cells are generally spherical, one thing, they may be ovoid, they may be irregular. Regularity might not be there, they may be irregular. But generally these cells are what? These cells are spherical or ovoid in nature, in shape, but they may be irregular, they may be column-like, right? They show this kind of structure as well. If we show the one cell diagram, it will show this kind of cell.
and we have another cell here. So बच्चों, it is very simple to understand these kind of cell. So these are what? These are the cell. The cell may be spherical, cell may be oval, cell may be parenchymal, cell may be like this this structure, that is your parallelogram and all those things. तो ये different shape हो सकते हैं, so they may be irregular in shape. One thing, cell wall is present. We know this is the cell wall, this is the cell wall, and we know cell wall is protective in function. Cell wall is protective in function. It protects the cell, right? Inside the cell wall, we have a very large vacuole. So we can see in this diagram, we have a very large vacuole inside it. This is a large vacuole. Here in this case, in this diagram, we have large vacuole like there. Here we can see the large vacuole. So every plant cell, majority of plants have very large vacuole inside it. So likewise here, parenchyma cell also have large vacuole. This vacuole may have sap, they may have air, they may have other food material may store. So depending upon the function of the tissue, the vacuole function accordingly. Okay, so this is exactly the diagram of parenchyma cell. Now this point is clear to everybody. This point is clear to everybody. If we draw the diagram of parenchyma cell, so we can draw the diagram of this cell, or we can draw the diagram like this, right? So each parenchyma cell, which forming your parenchymatous tissue, they are structural component, they are supporting cells and forming a tissue which are supporting tissue exactly. These cells have cell wall, these cells have nucleus, right? And they have a large central vacuole. And cells, if we are assuming about their shape, they may be spherical, they may be ovoid, they may be irregularity in shape, right? They may show irregularity. One very important point is that these cell, parenchyma cell, if they have chlorophyll, very important, if they have chlorophyll inside it. अब chlorophyll क्या होता है? What is chlorophyll exactly? Chlorophyll is a green colored pigment. It is a green colored pigment which is present in all those cells which perform photosynthesis, right? So it is a green colored pigment. If this green colored pigment is present inside the parenchymatous cell, then we call it as chlorenchyma. So chlorenchyma, CHLORENCHYMA. Chlorenchyma are those chlorophyll containing cells. They may be parenchymatous, but they should have chlorophyll pigment in them. Once they have chlorophyll pigment in them, these parenchymatous cells now called as chlorenchyma. So remember point, what is the difference between parenchyma and chlorenchyma? Chlorenchyma should have your chlorophyll pigment, but parenchyma do not have. They do not have. But when parenchyma have chlorophyll, they all cell call it as like a chlorenchyma, right? Now begin. Because we know very well, we know that, yes, what? Your chlorophyll is basically responsible for the production of what? They are responsible for the production of organic food material. Why? Why so? Because photosynthesis process is responsible for the production of food molecule, and you people very well know. Wait. 1 second. Now you can ask. I can hear you now. Yes, student. Now you can ask Toru or Akansh. Anybody? You want to ask anything? Yes, you can ask me. No, sir. Now, yes, ask. समझ में आ गया. Okay, good. Got a point? Right now, चलिए next point. Move करते हैं आगे की तरफ, right? So if you have any doubt, you can just type. So it will be like on this my screen exactly, and I will discuss all those points with you people. ठीक है? Okay? हाँ, Kabir, yes, you want to say something? Yes, Kabir? You want to ask something?
Akash is here, Toru, and so where is Kabir right now? Kabir का network issue हो गया, हाँ network issue हो गया सर, ये left right network issue है. तो आकाश यहाँ तक point clear है बच्चे? Right. And Toru, what about you बच्चे? Is it okay? Yes. So we move ahead. चलो आगे चलते हैं. Now, so what exactly what happened here? यहाँ chlorine कायमा समझ आया सभी को? Chlorine कायमा, right? Now move to the next point. Your chlorine kaima can synthesize food by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. So it converts your inorganic substances into organic substances or organic food, and you people very well know what is the reaction of this. You can write all those reactions here. For example, carbon dioxide molecule plus water molecule in the presence of sunlight, right? In the presence of sunlight, as well as in the presence of chlorophyll, right? Chlorophyll comes short में A and B and all those main pigment as, right? So carbon dioxide, water, and the sunlight and chlorophyll pigment, it will convert all these inorganic components because these are inorganic compounds. These are inorganic compounds. These inorganic compounds convert into the carbohydrate molecule, that is your glucose molecule, C6H12O6. Along with that, you people very well know oxygen molecule is released, right? And some amount of water also produced here, right? So this component, this compound, this glucose molecule which is produced here, this glucose molecule which is produced here is what? It is your organic molecule. This is your organic molecule. Now this point is here. Now this is your organic molecule. That is why we can hear your the process photosynthesis in your chlorine kaima, inorganic substances converted into the organic substances. These are the inorganic substances, and here the glucose molecule, which is later on converted into starch, is your organic molecule. Now this point is clear to all of you. We can move ahead. आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, right? See, इसको remove करते हैं animation से. Right now. So, what is the exact meaning of? Now we can move to the next point, that is your colon chyma. What is the meaning of colon chyma? Yes. What is the meaning of colon chyma? Anybody? Yes. See, in case of colon chyma, colon का meaning होता है glue. Colon means glue. तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, if you talking about the colon chyma, that means colon means glue, lubricating chipchipus material. So it gives what? It also gives mechanical support to the organs. Cells are living. We know very well all cells are living except, right, some cells are non living. वो कौन सी होंगी बताएंगे later on. They are elongated. देखो these are elongated cells exactly. They show elasticity. They have thick wall of cellulose deposition and the pectin deposition. Several times question asks, yes, what are the cell wall composition? So you should know cell wall of the plant cell is composed of cellulose. It is composed of cellulose and it has a pectin deposition. It has pectin or lignin deposition on this. So cell wall is composed of cellulose, pectin, and they have, if we talk about the colon chyma cell, the colon chyma cell exactly have shaped their rounded or oblique ends with oblique end. They almost ovoid or rounded shape. Some cells may have chlorophyll and hence they are able to synthesize their own food. So sometimes we can say colon chyma may also be perform the photosynthesis. They may have chlorophyll in them, right? But very important point, these colon chyma cells are absent. They are absent where? They are absent in roots. They are absent in roots. So remember the point, all the colon chyma cells are absent in root. This is a very important point. So the colon chyma cells have corner thickening. Corner thickening का मतलब क्या हो गया? If we draw the one cell like this,
if we draw the one cell, second cell like this, assume karo, so on the corner point there would be some depositions like material, right? There something is deposited on the corners like this, at the corners. So they have thickening at the corner, we can say they have the thickening at the corner. ठीक है, corner में क्या मिलेंगे, thickenings मिलेंगे, as compared to the other portions, corner they have some thickenings, material substances. So exactly what happens here, if we have studied parenchyma, we have studied collenchyma, then we studied collenchyma, and now we are going to study sclerenchyma. तो अभी तक हमने कौन कौन स्टडी किए? Number 1 we have studied parenchyma. Parenchyma diagram we have drawn. If parenchyma cell have chlorophyll, अगर chlorophyll है तो this parenchyma known as collenchyma. We will call it collenchyma. Wait, one down. Yes, previous slide advanced. This is our previous slide. Collenchyma, yes, I will show you. So in case of, see what happened exactly, if we simply study your parenchyma, if we take first parenchyma, if the cells of parenchyma have chlorophyll, if they have chlorophyll, अगर क्लोरोफिल है आपके पैरेन्काइमा सेल के पास, because some parenchyma cell have chlorophyll, then these cells are called as collenchyma. Then we call it collenchyma. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि collenchyma, collenchyma are the parenchyma cell, but they should have chlorophyll in them. So the definitions look like this. Definition मैंने पीछे भी दिखाई आप लोगों को. ये definition देखो कि parenchyma cell कैसी हैं, they are spherical है, irregular है, columnar है. और अगर if your parenchyma cell have the chlorophyll, if they contain chlorophyll, they are called as collenchyma. I think your doubt would be clear here. When what is your collenchyma cell? Again, they are all parenchyma cell ही है, but if they have chlorophyll in them. अगर chlorophyll है तो हम इनको collenchyma कहेंगे, CHO, not CO, क्योंकि इससे अलग एक और कैटेगरी लेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इसकी collenchyma की. तो ये collenchyma जो हम बात कर रहे हैं ये collenchyma से डिफरेंट है, ठीक है? इसका नाम ही blue light, इसका शेप डिफरेंट होता है, राइट? तो हम अब collenchyma दो कैटेगरी में पास हो गई, एक parenchyma हो गया, दूसरा collenchyma हो गया, राइट? तीनों कैटेगरी में पास हो गई हैं. सी कितना पॉइंट क्लियर है सभी को? डन. ओके, थैंक यू. ओके बच्चों, तो collenchyma की बात आती है, सेकंड कैटेगरी में बात थी, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है? सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, राइट? elongated होते हैं सेल इसके, इसमें भी सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन होती है सेल वॉल में. इनका शेप जनरली राउंडेड हो सकता है या ओब्लिक एंड का. ओब्लिक एंड मतलब राउंडेड कॉर्नर नहीं, इसके कॉर्नर होते हैं राउंडेड होते हैं, ओब्लिक होते हैं, पॉइंटेड एंड्स नहीं होंगे इसमें, राइट? लेकिन एक पॉइंट और है कि ये सेल जो collenchyma है इनमें कुछ सेल्स के पास क्लोरोफिल हो सकता है. If some cells have chlorophyll, they would be able to synthesize your carbohydrate molecule, food molecule. That means they can perform photosynthesis. But very important point, all collenchyma cell, they are totally absent in your root. Root में नहीं मिलेगी आपकी कौन सी वाली collenchyma cell, बिल्कुल नहीं मिलेगी roots में, right? और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि यार कैसी दिखती है, तो हम कहते हैं कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है एक सेल की. देखो ये कॉर्नर बनाया है मैंने, तो कॉर्नर में थोड़ी थिकनिंग दिखा दिया है, डिपॉजिटिंग सब्सटेंसेस का मैंने थिकनिंग दिखा दिया कॉर्नर पर, राइट? वेट नाउ, हां आप बताओ मुझे डाउट्स. यस, हेलो सर. यस नाउ आई एम नॉट. यस योर वॉइस इज हियर. यस योर वॉइस इज हियर. अच्छा सर, क्योंकि सर हाँ हेलो बोले जा रहे हैं आपको. अच्छा, ओके. यस, वांट टू आस्क समथिंग बच्चा? नो सर. ओके, क्यों डन.
अभी आकांश, यू वांट टू आस्क? सर यस कबीर, यू वांट टू आस्क? कॉलिन का मैं रिपीट कर सकती हूँ? एक मिनट कबीर, हाँ अब बताओ कबीर, तुम्हारा आवाज कम आ रहा था। यस कबीर। सर आप कॉलिन का मैं रिपीट कर सकते हो? मेरा लॉग आउट हो गया सर। कॉलिन कायमा वाला है ना? यू वांट टू आस्क कॉलिन कायमा कबीर? एक मिनट रुको जरा, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से छूट गया है लगता है ना। यस कबीर ना, छूट गया। कौन सा वाला पॉइंट पढ़ना था? पैरेंट कायमा? नहीं, कॉलिन का मैं रिपीट कर सकते हो? मेरा लॉग आउट हो गया था वो। ओके, ये हो गया, कॉलिन कायमा हो गया, कर लिया आपने? कॉलिन कायमा किया बच्चे? ये वाला बताऊं, कॉलिन कायमा बताऊं आपको क्या? साउंड आ रही है आपको मेरी? आकांश आपके पास आ रही है साउंड? ओके, एंड टोरू आपको आ रही साउंड? वॉइस आ रही है बच्चे? यस सर। ओके गुड। कबीर आपको नहीं आई बच्चे साउंड? वॉइस नहीं आ रहा क्या? यस कबीर, वॉइस आ रहा बच्चे? नहीं आया? हाँ कुछ इश्यूज है कबीर के साउंड वाले पार्ट पर। कभी डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? अगर बाई चांस कोई चीज छूट गई होगी ना तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव यू ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है? तो अभी कोई आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो बच्चे, राइट? कबीर यस, एक डाउट्स। ओके, आई वाज सेइंग यू रिपीट कॉलिन कायमा एज आई लॉग्ड आउट। ओके डन, ठीक है, तो कॉलिन कायमा मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है? वेट, कॉलिन कायमा, राइट। सो सी कबीर, कॉलिन कायमा क्या होता है? बहुत इजी है समझना, बहुत आसान है समझना कॉलिन कायमा को। होता क्या है कॉलिन कायमा के केस में, मैं इसको इधर नीचे ले आता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये सही है, ऐसे सही है, अब मैं आपको देख भी पाऊंगा यार, काफी सारे बच्चों के बेटा। कॉलिन कायमा के केस में क्या हो रहा है, थोड़ा ये समझना है कि ये जो कॉलिन कायमा है इनका एक तो कॉर्नर पर डिपोजिशन होता है, जैसे यहाँ सेल्स के कॉर्नर्स पे यू हैव डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, राइट? एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट कॉलिन कायमा का ये है, वन थिंग। सेकंड थिंग, जो सेल वॉल है बच्चा, सेल वॉल ऑफ कॉलिन कायमा, they are made up of cellulose and pectin and their amount would be more at corner, तभी तो ये जो डिपोजिशन सब्सटेंस है कॉर्नर पर ज्यादा हुआ है क्या? सेल वॉल का जो डिपोजिशन मटेरियल है जो कि पैक्टिन का बना हुआ है और सेलुलोज का बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ एग्जैक्टली कॉलिन कायमा में, on the corner they have deposition of cell wall material which is cellulose and pectin. And second point is this, generally shape of the collenchyma is rounded. कैसा है बच्चों? राउंडेड हो सकते हैं ये, या ऑब्लिक शेप का हो सकता है, या ऑब्लिक एंड हो सकते हैं, कोई पॉइंटेड एंड नहीं मिलेंगे, है ना? देयर वुड बी नो पॉइंटेड एंड्स और कॉर्नर in your collenchyma cell, one thing. And third point is very important, कि in your root these collenchyma is totally absent. हमारे collenchyma नहीं है रूट सेल्स में, ठीक है? तो क्या अभी ये सारे पॉइंट हमें क्लियर हो गए? कॉर्नर थिकनिंग है, रूट्स में एब्सेंट है, यस, वन डाउट वी हैव, अंडरस्टूड? ओके कबीर, गुड। So everybody, now we can move to next point. अब हम आगे पॉइंट में चलते हैं, ठीक है? चलिए। अच्छा, मैंने क्या किया है, अब मैं एक काम करने वाला हूं ताकि आपको कभी डाउट हो तो आप ऐसे करके ना रेज हैंड कर लेना, ठीक है? मैंने सभी के वीडियोस ऑन करके रखे हैं, तो किसी को कुछ पूछना है जस्ट रेज हैंड, तो मुझे लगेगा मैं अपना साउंड वाला ओपन कर दूंगा
क्योंकि अगर मैं ऑन करके रखता हूँ तो ये साउंड जो है इको शो करती है काफी ज्यादा, है ना, इको शो करती है। इको शो करने में आपको कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या करता हूँ मैं अपना यहाँ से साउंड वाला ऑप्शन अपने वाला बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी साउंड जाती है आप तक जाती है और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो वो इको क्रिएट करता था। तो ये मैंने सोचा कि इसको साउंड को ऑफ करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वॉइस, मेरी जो वॉइस है आपकी रिकॉर्डिंग में भी सही जाएगी और आपके पास भी सही जाएगी, इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कई बार, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हमने ये किया है कि आप सबकी वीडियो मैंने सामने पर ओपन है, आप सब अपना ओपन रखना चाहे तो गुड है, बस माइक ऑफ रख सकते हो, जैसे कुछ पूछना है तो आप ये करेंगे सर आई हैव डाउट, ठीक है, तो मुझे दिखेगा डेफिनेटली, तो मैं आपका अपने यहाँ से ओपन ऑन कर दूंगा, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी, मैं भी आपको बता पाऊंगा, ठीक है, डन है। चलो, तो मैंने ओपन रखा सभी के लिए। सी, तो अभी हमने बच्चों पैरेंट कायमा समझ लिया, अभी हमने कोलन कायमा समझ लिया और कोलन कायमा भी समझा था हमने। कोलन पैरेंट कायमा में ही अगर क्लोरोफिल का डिपोजिशन है तो हमने क्या कहा था, तो कोलन कायमा कहा था, CHO वाला। तो CHO वाला और कोलन कायमा, C और वाला नहीं, दोनों डिफरेंट है बच्चों, ठीक है, आपके वर्ड दोनों डिफरेंट है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरन कायमा कैसा है और कहाँ मिलता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी, अब देखता हूँ मैं इसको वॉइस को अब म्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से मैं अपना। सी, स्क्लेरन कायमा क्या है? स्क्लेरन कायमा आप ऐसे समझो, these are cells which have very very thick wall, बहुत ज्यादा थिक वॉल हैं। कैसी हैं? बहुत ज्यादा थिक वॉल्स हैं। देखो यहाँ पर कैसी थिक वॉल्स यहाँ रिकमेंडेशन किया है। These cells have very thick walls due to the deposition of water resistant material lignin। तो लिग्निन जो पॉइंट मैंने मेंशन किया यहाँ पे, दिस लिग्निन डिपोजिशन इज वेरी इन ह्यूज अमाउंट। देखो, we have diagram of your sclerenchyma. This is the cells. We have outer wall like this. These are the wall-like structure. They have deposition. They have a deposition of very hard substance called the lignin. तो lignin का deposition है on the outer wall of the cell, and this lignin deposition make it very very hard. Make it very very hard. See, thickening of cell wall is so great that sometimes सेल कंटेंट आर कंप्लीटली लॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है सेल वॉल पर कि अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, अंदर का जो लिविंग जूस है, अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाता है ना, वो ड्राई हो जाता है। और जब वो ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी सेल डेड जैसी होने लगेगी, जैसे डेड सेल होती जा रही है। तो अल्टीमेटली वी कैन से ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन ऑन द वॉल, it may cause the loss in the inner cytoplasmic content, right? तो ये वाला पॉइंट में समझ आता है कि ये देखो, ये सेल्स हैं आपकी, these are the all the cells of your sclerenchyma। sclerenchyma कई बार क्या करते हैं, स्टोन्स फॉर्म करते हैं। आप ये मत समझना सर स्टोन्स क्या होते हैं। yes Toru, you want to ask? yes wait, yes Toru, yes सर मैं उपमन्यु हूँ। okay, you want to ask? उपमन्यु। उपमन्यु? हाँ। Okay, your name is उपमन्यु? Yes sir। अरे यार उपमन्यु, एक काम करा, जब मैं तुम्हें वही कर रहा था तो आपका उपमन्यु, do one thing, जब लॉगिन करते हैं ना बच्चा, जैसे ही तुम्हारी नेम पूछता है तो वहाँ अपना नाम डाल दिया करो। एक बार डालोगे ना, वो हर बार फिर वही नाम आ जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है, हर बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओनली वन टाइम फिल करोगे लॉगिन के टाइम पर, तो आपका वो नेम हर बार शो होगा हर टाइम पर, ठीक है। एक ही, अगर एक ही लैपटॉप से कर रहे हो आप लॉगिन तो ठीक, तो मुझे आपका नाम याद रहेगा फिर। अदरवाइज पता है कितनी सारी क्लासेस होती हैं यार, है ना, कबीर, आकांक्ष, तुम पता है इतनी सारी क्लासेस होती हैं, तो सभी के नाम मुझे याद नहीं हो पाते। तो आज भी मुझे याद आ गया, उपमन्यु तो मुझे याद आ गया, ठीक है, लेकिन जो लिखा होगा मैं उसी नाम से फिर आपको प्रोनाउंस करना शुरू कर देता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ, है ना। वो आपके डैडी का नाम हो सकता है या किसी और का नाम हो सकता है ना, ठीक है। चलो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी लॉगिन करेंगे हम लोग, तो क्या नाम डालेंगे, हम उसमें अपना नेम फीड कर देंगे, ताकि आपका नाम मुझे एकदम शो होगा, फ्लैश होता है ना, सामने लिखा होता है कि जैसे आकांक्ष का लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, कबीर का लिखा आ रहा है, ऐसे उपमन्यु तुम भी कर लोगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो अभी हमें स्क्लेरेnchyma समझ आया, पहले बताओ स्क्लेरेnchyma समझ आया हमें, सभी कहो यस, और जिसको नहीं आया उसको बताओ नहीं सर यहाँ समझ नहीं आया, तो हम दोबारा बताएंगे इस पॉइंट को। आकांक्ष, तुमने तो मतलब बैकग्राउंड में मेरी तरह कुछ कुछ लगाया हुआ है ना वर्चुअल बैकग्राउंड। यस 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 आकांक्ष, वर्चुअल बैकग्राउंड ना,
हाँ कबीर, you want to ask something? Wait. Yes, बच्चे ask. सर मेरे को स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स अच्छे से समझ नहीं आया। स्क्लेरेंकाइमा का वर्ड है ना, वर्ड बताता हूँ बहुत अच्छे से बताता हूँ। नहीं सर इजी सर स्क्लेरेंकाइमा फाइबर समझ नहीं आया। आएगा, अभी आएगा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा मेरे, अभी समझाता हूँ, ठीक है। फाइबर बताऊंगा और स्टोन बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, ठीक है। अभी पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया वाला, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सी नाउ, स्टार्टिंग नाउ। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या है, पहली बात तो हमने ये समझ लिया कि डिपोजिशंस हैं। अब होता क्या है, अल्टीमेटली जब अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म सेल का ड्राई कर जाता है, तो आपकी जो सेल्स हैं बच्चों फाइबर की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। किस तरह? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, पतले पतले फाइबर, जैसे ये देखो, ये एग्जैक्टली स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स हैं। एंड अब ये शेप कैसी है, इलोंगेटेड हो जाती है थोड़ी सी, सेल थोड़ी इलोंगेटेड है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि अंदर का मटेरियल एकदम ड्राई हो चुका है लगभग। तो आपके जैसे नट्स होते हैं ना, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड की जो कवरिंग्स होती हैं, उसके जो गुआवा के अंदर जो आपका मिलता है एकदम सी हार्ड तरह के जो ग्रैन्यूल्स मिलते हैं अंदर की तरफ, जो खाते हो आप, तो सब वो स्क्लेरेंकाइमा सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ये स्क्लेरेंकाइमा फाइबर के डायग्राम्स हैं और ये स्टोन्स के हैं, दीज आर द स्टोन्स एग्जैक्टली, ठीक है। यस, वेट एक मिनट, वन। हाँ, स्टोन सेल्स बताते हैं। स्टोन सेल्स क्या होते हैं आकांश? स्टोन सेल्स एग्जैक्टली जैसे डेफिनेशन वाइज हम देखें, कुछ चीजें समझ आएंगी आसानी से, वेट करो। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए मैंने, कुछ डायग्राम लिए आप लोगों के लिए। स्क्लेरेंकाइमा गिव्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन। अब स्टोन की वाली बात आती है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास सेल्स कुछ ऐसी हैं जो बहुत हार्ड सेल्स हैं, उनमें डिपोजिशन जो है लिग्निन का बहुत ज्यादा है, तो अब और उसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो ड्राई हो चुकी है, पूरी से ड्राई हो चुकी है, तो सेल सिकुड़कर छोटी सी हो जाती है, या तो फाइबर के फॉर्म में हो जाएगी लंबी जैसे स्केलेटल फाइबर थे, या फिर वो क्या होगी, राउंडेड स्ट्रक्चर, स्टोन्स की तरह स्ट्रक्चर बना लेगी। तो स्टोन्स आर नथिंग दीज। अब स्टोन को कंपैरिजन मत करना कभी कि हम बॉडी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनसे कंपैरिजन नहीं करना, वो स्टोन डिफरेंट हैं बच्चों, और ये प्लांट सेल्स के स्टोन्स हैं, या हमारी स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं, दे शो लाइक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, सो दे मे कॉल्ड स्टोन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म इज ड्राइड, साइटोप्लाज्म इज टोटली ड्राइड, इसलिए वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा राउंडेड हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है, और इट लुक लाइक अ स्टोन, तो वी कॉल इट स्टोन सेल। पर इसको कोरिलेट मत करना कभी हमारी बॉडी किडनी के अंदर स्टोन जो होते हैं, हमारी बॉडी की जो किडनी के स्टोन होते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट, वो एकदम अलग है बच्चों। वो क्या है? वो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक सॉल्ट का डिपोजिशन होता है हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स में, या फिर लीवर के पार्शन में, या डिफरेंट पोर्शन में वो इकट्ठे हो जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट, उनको स्टोन्स अलग कहा जाता है, वो दैट इज डिफरेंट स्टोन्स, राइट, वो सॉल्ट है एग्जैक्टली, दैट सॉल्ट। बट यहाँ प्लांट में इनको स्टोन सेल कहा है, और these stone cell are what they are, simply sclerenchyma cell who lost totally their cytoplasm and they become rounded. Now the point is clear. Akansh, this point is clear to you? चलिए good है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने क्या दिया आपके सामने? स्क्लेरेंकाइमा गिव सपोर्ट, पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, इट गिव सपोर्ट। नंबर 2, it provides strength to the organ, यानी जिस प्लांट पार्ट में आपका स्क्लेरेंकाइमा सेल मिलेंगे वहां पर स्ट्रेंथ होगी, सेल में, सेल के पार्ट में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मिलेगा, और वहां पे सपोर्ट भी मिलेगा काफी आपके प्लांट पार्ट को। एग्जांपल बहुत अच्छे से याद करनी है। नंबर 1, हार्ड ग्रिप एंड पियर फ्रूट्स। आपकी जो पियर होता है ना, आड़ू, उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसकी जो सेल का जो कवरिंग होता है पियर का, या फिर और भी नट्स वगैरह होते हैं, उनके हार्ड नट्स होते हैं, जैसे अखरोट हो गया या वैलनट्स हो गए हैं, ये इनकी जो कवरिंग्स होती हैं, वहां पर भी सीड की जो कवरिंग होती है वहां पर भी क्या मिलता है? विच काइंड ऑफ सेल आर देयर? दे आर स्क्लेरेंकाइमा। वहां क्या मिलते हैं? स्क्लेरेंकाइमा मिलते हैं, ठीक है। तो brittle coat of seed को and hard wall of nuts, all these have your sclerenchymatous cell. Now point is clear to all of you. Easy, Kabir and Upamanyu, right? Okay, move next.
Sclerenchyma cells are greatly elongated and pointed at both ends, termed as fiber, जो हमने पहले डायग्राम में देखे थे। जूट फाइबर आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, जूट फाइबर्स एंड कॉयर, जिससे रस्सियां बनती हैं। अगर आप कभी गए होंगे अपने गांव वगैरह कभी गए होंगे विलेजेस वगैरह में, वहाँ पे चारपाई होती है, कॉर्ड से कहते हैं, वो रस्सी की बनी होती है, जूट कॉयर की बनी होती है, राइट? तो दैट इज व्हाट, यस, वन सेकंड, आई हैव वन क्वेश्चन। ओके उपमन्यु, द पॉइंट इज दैट यू गॉट द पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट उपमन्यु, वी आर टॉकिंग अबाउट जूट एंड कॉयर। ये क्या है? जूट एंड कॉयर आर नथिंग, दे आर स्क्लेरेंकाइमा सेल से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, राइट? दे हैव थिक बंडल ऑफ फाइबर। वहां पर जो स्क्लेरेंकाइमा सेल है किस फॉर्म में है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, फाइबर के फॉर्म में है, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब डायग्राम देखो, डायग्राम में यहाँ पर ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिया है। बुक का डायग्राम बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम शो कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सेल यहाँ पर देखो, ये लिग्निन सेल कैसी है? लंबी लंबी फाइबर्स के फॉर्म में है, दीज आर द फाइबर्स के फॉर्म में, लंबी लंबी, ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ डिपोजिशन नहीं हुआ है, 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 यानी जहाँ जहाँ पे पिट्स बन गए हैं, दैट, हाँ यस सर, इन सेल्स में क्या न्यूक्लियस होता है? बच्चे, न्यूक्लियस क्या होता है? ड्राई कर जाता है पूरी तरह से, ठीक है? साइटोप्लाज्म ड्राई कर जाता है, न्यूक्लियस कभी नहीं दिखेगा, चांसेस बहुत कम है ना दिखने के, मतलब चांसेस बहुत कम है दिखने के, ठीक है वो, ठीक है? अदरवाइज जब तक ये पूरा ड्राई नहीं रहता साइटोप्लाज्म, तब तक न्यूक्लियस दिखेगा। अब जब पूरा ड्राई हो जाएगा, जैसे फाइबर की फॉर्म में बनेंगे, फाइबर या स्टोन बन गए, तब न्यूक्लियस हमें नहीं दिखने वाला, तब हमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं दिखने वाला। वहां खाली क्या दिखेगा हमें? वी फाइनली ऑब्जर्व ओनली द सेल वॉल, और सेल वॉल काफी थिक दिखेगी, राइट? ड्राई साइटोप्लाज्म होगा, एंड साइटोप्लाज्म ड्राई का मतलब है वी कैन नॉट फाइंड लिक्विड मटेरियल, वाटर वाला कंटेंट, लिविंग जूस वाला कंटेंट वी कैन नॉट फाइंड देयर, राइट? सो न्यूक्लियस भी हमें ऑब्जर्व नहीं होने वाला है, स्टेनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेनिंग में प्रॉब्लम, बस फाइबर दिखेगा, राउंडेड दिख सकता है, स्टोन की फॉर्म में दिख सकता है, ड्राई हो चुका है पूरा प्रोटोप्लाज्म, लाइक दिस। तो ये कुछ डायग्राम ऐसे मिलता है हमारे पास, एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं ये आपकी बुक्स के, या डिफरेंट बुक्स जो मेंशन की गई उसके अंदर हैं। अब देखो एग्जांपल और ले रहा हूं थोड़ा सा मैं यहाँ पर। रोप एंड मैट्स, मैट्स आप जानते हो, रोप्स आप जानते हो, दैट वी कॉमनली यूज इन आवर एवरीडे लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा का ही प्रोडक्ट्स हैं वो, ऑल दीज। लाइनिन एंड हेम्प, लाइनिन एंड हेम्प आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्लेरेंकाइमा। हेम्प भी जानते हो, लाइनिन की एक आपका कॉटन जैसा कपड़ा होता है, राइट? ऑल दीज मतलब फैब्रिक्स वगैरह में आते हैं सारे। और हेम्प जो है ये आपकी भांग वगैरह उस कैटेगरी के फाइबर से ऑब्टेन होती है, वहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सब फाइबर कैटेगरी की चीजें हैं, ये भी हमें स्क्लेरेंकाइमा से मिलता है। लाइनिन हेम्प यूज इन प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सटाइल वगैरह, है ना? टेक्सटाइल में यूज होता है काफी ज्यादा ये चीजें। लाइनिंग में जानते हो, लाइनिंग का कपड़ा ऐसा कहते हैं कि यार मेरी जो शर्ट है लगभग लाइनिंग की है सर, आपकी बहुत अच्छी शर्ट है, लाइनिंग की है, क्योंकि उस पे बहुत कॉटन जैसा होता है, सॉफ्ट होता है, राइट? और फैब्रिक अच्छा माना जाता है उसको। तो दिस इज यूज्ड इन द केस ऑफ, तो दिस स्क्लेरेंकाइमा इज मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ टेक्सटाइल्स में यूज होता है, राइट? एंड हार्ड वैलनट शेल पढ़ चुके हैं हम, ग्रिटी मटेरियल ऑफ स्केल and pulp of pear obtained from the sclerenchyma। ये सब चीजें जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल से ही बनी हुई हैं, जो हार्ड दिख रही है, चाहे फ्रूट के अंदर है, चाहे सीड का नट का कवरिंग है, या फ्रूट का कवरिंग है, चाहे वो रोप है, चाहे वो और अलग कोई और चीजें हैं। तो ये all these are made up of sclerenchyma cell। Now all these about we have learned about the simple tissue, simple permanent tissue अभी पढ़े हम लोगों ने। Now we are going to study about the complex part, complex permanent tissue को पढ़ने वाले हैं हम लोग। Now you can see this diagram, इस diagram में आपको कुछ चीजें मूव करती हुई दिख रही हैं। What are all these things? यहाँ पर आप देख रहे हो exactly कि यहाँ कुछ रूट कैप दिख रहा है आपको, रूट कैप में से कुछ मूवमेंट दिख रहा है, राइट? आज कबीर के साथ कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, कबीर का नेटवर्क है थोड़ा इशू कर रहा है आज, ना? काफी कई बार लैग हो जाता है बेचारा, उसका कंटेंट छूट जाता है कई बार, आई एम शोइंग, ठीक है? तो कबीर कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ भी, ठीक? तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों? अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें आपने यहाँ क्या देखने को मिल रहा है इस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कि एग्जैक्टली कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कबीर आपको कुछ निकला नहीं, डोंट वरी, आप कई बार लैब कर पा रहे हो क्योंकि नेटवर्क का इशूज है,
ज़्यादा नहीं निकला होगा आपका एग्जैक्टली कंटेंट। तो यहाँ पे देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रूट से ऊपर की तरफ। अब क्या चीज़ मूव कर रही है सर, हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं प्लस मिनरल्स हैं बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह भी मान लेते हैं, ये वाटर मिनरल्स यहाँ से ये सॉइल से होता है, रूट हेयर से निकलता है, रूट हेयर है, रूट हेयर से मूव करता है वैस्कुलर बंडल्स में, कहाँ मूव करता है, इट विल मूव टुवर्ड द वैस्कुलर बंडल। अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो वो वाला वैस्कुलर बंडल जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज योर this green portion. So this green portion wala thing is basically responsible for movement of water molecule and minerals and salt to upside direction, and it is what, this is your nothing, this is exactly xylem, this is your xylem. So xylem is basically involved in the transport of what, transport of water and mineral molecules, right? And these xylem vascular bundle present in your root, it is present in your shoot, it is present in your mid-rib of the leaf, so that your water will reach to the upper body parts with the help of vascular bundle, that is called xylem. So xylem is what exactly? Xylem is complex vascular bundle. Complex vascular bundle. This point is clear to everybody? Upamanyu, Yes, Akansh, Kabir, everybody here? Okay, good. अब नाउ हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड कर सकते हैं, राइट? क्यों है क्या भाई, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट, डिफरेंट टाइप। तो कॉम्प्लेक्स है, वहां डिफरेंट की सेल्स अरेंज हैं। जब डिफरेंट टाइप की सेल्स अरेंज होकर डिफरेंट टाइप टिश्यूज बना रहे होंगे, उन डिफरेंट टिश्यू से अब कॉमन एक फॉर्मेट बनेगा, कॉमन एक टिश्यू बनेगा जो कॉम्पैक्ट, जो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। अब जाइलम की बात करते हो, जाइलम भी तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है ना। जाइलम भी बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनता है, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर्स, राइट? ऐसे बहुत से कंपोनेंट मिलेंगे आपको। तो देखो यहाँ पर it is also called vascular tissue. Why we call vascular tissue? Because the vascular is the conducting tissue, जो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, right? That's why it is called the vascular tissue. Transport of water and dissolved food material up to the and down the plant part. Conducting tissue are two type. Number one is xylem and number two is phloem. अब phloem यहाँ कहाँ दिखेगा? देखो phloem आपको दिखेगा इस xylem में जस्ट साथ में दिखेगा। तो ये जो आपका पिंक कलर वाला है, दिस पिंक कलर पोर्शन, दिस पिंक कलर पोर्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर phloem. तो ये जो पिंक कलर वाला पोर्शन, दिस इज योर phloem, राइट? दिस पिंक कलर पोर्शन इज कॉल्ड phloem. तो ग्रीन कलर वाला पोर्शन इज योर xylem एंड द पिंक कलर पोर्शन इज योर phloem. इसके अलावा पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, वो उसके सराउंडिंग मिलती हैं, वो पार्ट तो है, लेकिन जो मेन वैस्कुलर बंडल है वो xylem और phloem की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब xylem को थोड़ा उपमन्यु, आकांक्ष एंड कबीर थोड़ा स्टडी करते हैं इन डिटेल। सी, xylem रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, सब जानते हैं अच्छे से। साथ ही साथ इसके और भी पार्ट हैं। नंबर वन, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल व्हिच यू हैव टू लर्न. इट इज मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स, तो xylem ट्रैकीड्स एंड xylem वेसल्स कहा जाता है। तो यू शुड लर्न xylem इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड कैसी होती हैं? ट्रैकीड इज एलोंगेटेड, पतली पतली एलोंगेटेड होती हैं। दे हैव होलो सेल्स, होलो सेल्स मतलब अंदर से खोखली होती हैं। दे हैव होलो सेल्स विद इट्स बोथ एंड टेपरिंग, दोनों एंड टेपर्ड होते हैं। ऐसे करके लंबी सेल्स होंगी, दोनों एंड टेपर्ड होंगे इसके, राइट? तो दीज आर द एलोंगेटेड सेल्स एंड दे हैव टेपरिंग एंड एज वेल एज वॉल आर थिक। इनकी जो वॉल्स होती है, सेल वॉल काफी मोटी होती है, काफी थिक होती है, और साथ ही साथ में डिपोजिशन होता है लिग्निन का। भाई लिग्निन के डिपोजिशन होने से क्या होगा? क्या इट विल मेक इट हार्ड। ये कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो अब आपको एक कुछ आइडिया दिख गया होगा ट्रैकीड कैसी होती है। ट्रैकीड जो होती है लंबी लंबी सेल्स हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है, जिसपे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है एंड इसके टेपर होते हैं। दैट्स इट। कुछ पॉइंट्स पर एट सर्टेन स्पॉट लिग्निन इज नॉट प्रेजेंट। भाई अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं बच्चों कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये मैंने कुछ एक सेल बनाया, ये क्या बनाया हमने? xylem का elongated वाला पोर्शन, जिसको हम कहते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड का डायग्राम बना रहा हूं, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कुछ है। इसके जो ये थिक वॉल दिखा दिया मैंने लाइक दिस, ठीक है? थिक वॉल दिखा दिया लाइक दिस, ऐसे करके, ओके?
अब बात ये मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं पर सेल्स में क्या हो रहा है, इन योर सेल्स देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, बट सम पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेल्स में एट द सेल वॉल देयर इज अ नो डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं हो रहा। जैसे कहाँ डिपॉजिट नहीं हो रहा, मान लीजिए इस सेल की बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट पे यहाँ डिपॉजिशन नहीं हो रहा मटेरियल का। तो ये वो रीजन हो गया जहाँ सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं हो रहा है, बाकी पूरे पोर्शन में सब्सटेंस डिपॉजिटेड है। मान लीजिए यहाँ डिपॉजिटेड है, यहाँ डिपॉजिटेड लिग्निन, लेकिन इस वाले पोर्शन में डिपॉजिटेड है, इधर डिपॉजिटेड है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है आपके पास, आप क्या देख रहे हो, ये रीजन देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर रीजन वेयर डिपॉजिशन ऑफ लिग्निन इज नॉट देयर, so it will make a pit, it will make a pit, ये pit फॉर्म हो गया, pit means गड्ढा जहाँ पे कोई चीज डिपॉजिट नहीं हुई है। तो आपको कहा कि yes at certain point ये spots lignin is not deposited and these spots are known as pits, इनको pits कहते हैं, क्या कहते हैं, pits। ठीक है, क्या pits वाला वर्ड समझ आया सभी को? उपमान्यु, कबीर, आकांश and everybody? Yes sir, ठीक है। Next point. Now ये डायग्राम देखो, जाइलम में जो ट्रैकीड शो की गई है, देखो ट्रैकीड, ये इसमें डायग्राम शो कर रहा था ना, ट्रैकीड वाला डायग्राम, ये वाला लगा मान लो, तो एज्यूम करके चलो उसको थोड़ा सा, वेट, सी नाउ, अगर इस ट्रैकीड को स्टडी करोगे तो ट्रैकीड की ये क्या है, जो सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, this particular point, these are the reason where your substance is not deposited, और यही रीजन है आपके, इनको पिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम पिट्स कहते हैं। कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, वेट, सी दिस पॉइंट, यहाँ पर क्या है आकांश, ये वो रीजन बताया मैंने जहाँ पर पिट बन गया है, एक एग्जांपल लिया है खाली बनाकर, जहाँ पर सरफेस पर ये लिग्निन का डिपोजिशन इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये पिट बन गया है। इसी तरह से अगला पॉइंट दिखाता हूँ, अगली स्लाइड में मैंने क्या शो किया है, वेट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जरा अगली स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में क्या देख रहे हो आप, इस स्लाइड में भी दिख रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर, यहाँ वाले रीजन में, एट दिस रीजन सेल वॉल के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन जंक्शन बन गया है जहाँ पर कोई डिपॉजिटिंग सब्सटेंस नहीं आया, कोई लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो दैट इज व्हाट, दैट इज पिट। इस पिट से तो होगा क्या, सब्सटेंस यहाँ से वहाँ उस सेल से इस सेल में आ पाएंगे, जा पाएंगे, ठीक है, ट्रैवल करेंगे। जैसे देखो ये जाइलम वेसल है, ये तो ट्रैकीड है बच्चों, ये तो जाइलम ट्रैकीड बताइए वाला डायग्राम ट्रैकीड का है, दिस इज योर ट्रैकीड, और ये वाला है जाइलम वेसल का, जाइलम वेसल में पिट्स हैं, जाइलम वेसल में पिट्स हैं, तो ये वाला पिट है, यहाँ ये पिट है, जहाँ सब्सटेंस इधर से इधर आ रहा है, तो पिट्स का क्या हुआ, पिट्स एग्जैक्टली, पिट्स वो रीजन हुए जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो रहा है, ये मेरे पास समझ आते हैं अभी। तो जाइलम वेसल में भी दिखा दिया मैंने पिट है, और जाइलम ट्रैकीड के अंदर भी पिट है, और जाइलम वेसल और ट्रैकीड दोनों मिलकर आपका जाइलम कॉम्पोनेंट बनाएगा, है ना, मेरे जाइलम कॉम्पोनेंट बनाएगा, देखो आगे पॉइंट। तो they form a system of long tube, the xylem tracheids and xylem vessel form a long tube system and channel through which water can move easily। पानी जो वाटर है इन चैनल के थ्रू, लंबे लंबे चैनल्स के थ्रू मूव कर सकता है। ट्रैकीड आर डेड सेल, जैसे कि एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, क्या सर न्यूक्लियस होता है स्क्लेरोकाइमा में, तो मैंने कहा यार ड्राई हो चुका है, तो न्यूक्लियस कहाँ से दिखेगा, डेड हो जाता है। जब किसी सेल को डेड सेल मान लेते हैं, उसका न्यूक्लियस भी खत्म मान लेते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म भी हम डीजेनरेटेड मान लेते हैं, डिस्ट्रॉयड मान लेते हैं, ठीक है, तो ना ही प्रोटोप्लाज्म दिखता है ना ही न्यूक्लियस दिखता है उसके केस में, अगर डेड सेल कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक। तो इसी तरह से आपके जो यहाँ स्क्लेरोकाइमा के सेल के जो वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं खास में, तो वेस्कुलर बंडल जो ट्रैकीड्स होती हैं, ट्रैकीड्स की बात करते हैं स्पेशली, तो दीस ट्रैकीड सेल्स आर डेड सेल्स, एग्जैक्टली क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, डेड सेल्स हैं इनका। अब बात करते हैं the wall show various kind of thickening, अलग-अलग जगह पर इस ट्रैकीड में अलग तरह की थिकनिंग मिलती है जो हम यहाँ स्टडी करते आए हैं। अब थोड़ा देखो जरा आगे की तरफ, जाइलम वेसल पे आओ, जाइलम वेसल पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जाइलम वेसल पे हमें ये मिल रहा है, यस दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द नंबर ऑफ सेल प्लेस एंड टू एंड, यानी कि हमारे पास जाइलम वेसल्स कैसी हैं,
ट्यूब जैसी हैं, एक के साथ दूसरे अटैच है और एक एंड से दूसरे एंड पर अटैच है। मान लीजिए मेरे पास एक सेल ये है जाइलम वेसल का लाइक दिस, दूसरा ये है, तो एंड बाय एंड है ना, एंड बाय एंड ये आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से अटैच हैं लाइक दिस। हाउ मच टाइम वी हैव राइट नाउ? ऑलमोस्ट डन होने वाला है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है बच्चों, ये सारी सेल कैसी हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और ट्यूब लाइक हैं, राइट। आपस में यहाँ से मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा होगा, इसके बीच में स्पेस रहता है, कनेक्शन रहती है, तो आपको कहते हैं दीज आर ट्यूब लाइक सेल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय नंबर ऑफ सेल प्लेस एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब इसका एंड ये हुआ, इस सेल का ये एंड हुआ, इस सेल का ये एंड हो गया, दूसरे सेल का स्टार्टिंग ये हुआ, तो एंड टू एंड ये अटैच है दूसरे से। now move to the next portion, that is your flowing। तो flowing क्या होता है? flowing also a vascular bundle which is also involved in the transport of food molecule। जैसे जाइलम का इन्वॉल्वमेंट था वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट में, अब in case of your flowing the food molecule is transported with the help of another vascular bundle, that is your phloem। तो phloem में definition हम ये लिखेंगे, phloem is a living tissue which is concerned with its translocation of the food in plant। अब एक चीज देखो, वाटर का ट्रांसपोर्ट था, अब यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट है। वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ था ये बताओ? वाटर का ट्रांसपोर्ट था फ्रॉम रूट टू द लीफ की तरफ, तो डायरेक्शन कैसा था? अपवर्ड, डायरेक्शन कैसा था? अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम का डायरेक्शन कैसा है? फ्लोएम एक लीफ में बन रहा है तो स्टेम में जा रहा है, स्टेम से रूट में जा रहा है, हो सकता है लीफ नीचे वाली हो तो नीचे वाले लीफ से ऊपर वाले पार्ट में जा रहा हो। तो फ्लोएम में फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है? टू वे, यानी अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डाउन टू अप होता है, खाली वन डायरेक्शन होता है। तो वाटर मूवमेंट या वाटर ट्रांसपोर्ट वन डायरेक्शनल होता है एंड फूड का ट्रांसपोर्ट टू डायरेक्शनल होता है। आगे बढ़ते हैं, तो मेन कंडक्टिंग पार्ट है बच्चों फ्लोएम में सीव ट्यूब। कौन है वो? सीव ट्यूब। हम कहते हैं सबसे पहले यस फ्लोएम एक कंडक्टिंग पार्ट है, वैस्कुलर बंडल है। दिस वैस्कुलर बंडल हैव सेवरल कंपोनेंट्स, सेवरल टिश्यूज, पर जो मेन टिश्यू है इसका, दैट मेन टिश्यू इज योर सीव ट्यूब, राइट। अब ये सीव ट्यूब किसका बना हुआ है? दीस सीव ट्यूब आर फॉर्म्ड ऑफ elongated cylindrical सेल। कैसी सेल है ये सीव ट्यूब की? लंबी लंबी पतली पतली elongated सेल्स हैं, अरेंज वर्टिकल रोज में। जैसे कि वर्टिकल रोज का मतलब हुआ आपकी एक सेल ऐसे कुछ हुई, इसके नीचे एक और सेल हो गई लाइक दिस, तो जाकर ही टनल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? टनल जैसा ही चैनल बना लेते हैं, इसके थ्रू वाटर फूड का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो ये एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं these sieve tubes। The terminal wall of each sieve tube have many minute pores। अब भाई इनमें भी यहाँ पर भी पोर्स होते हैं, जैसे कि पहले वाले डायग्राम के अंदर भी हमने स्टडी किया था कि सर बीच बीच में वॉल पे पोर होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं? यहाँ पर भी पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में मूव कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द सीव ट्यूब की वॉल पर देयर हैव मेनी माइन्यूट पोर्स थ्रू व्हिच फूड मटेरियल पासेस वेरी इजीली। तो अब में ये समझ आ जाता है कि जो जितना भी हमारे पास सीव ट्यूब है जिसमें फूड मॉलिक्यूल ट्रांसलोकेट कर रहा है, वो एक सेल से दूसरे सेल में पोर्स के थ्रू जाएगा, पिट्स के थ्रू जाएगा। तो जितने ज्यादा पिट्स हैं उतना आसानी से मूव करता है। तो सीव ट्यूब में पिट्स का नंबर, पोर्स का नंबर काफी ज्यादा होता है, सो इट कैन ट्रांसलोकेट फूड मॉलिक्यूल वेरी इजीली। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास डायग्राम में जाइलम, अभी हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल में डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी हमने सीव ट्यूब पढ़ा था। यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को देखो, वो ये पूरा डायग्राम जाइलम का है। ये जाइलम वेसल दिखाया गया, अलग अलग शेप बताएगी। पिटेड वाली, एक पिटेड वाली वेसल है, रेटिकुलेट शेप है, स्क्लेरिफॉर्म शेप है, स्पाइरल शेप है, एनुलर शेप है। तो दीस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम जिसमें कि डिफरेंट शेप के पिट्स वगैरह बन रहे हैं। इसे आप देख सकते हो, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि जाइलम का वेसल एंड फ्लोएम का वेसल। जाइलम का वेसल रिस्पांसिबल है वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर प्लस मिनरल, और आपका जो फूड मॉलिक्यूल है, ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है, विद ट्रांसलोकेट होता है इनके विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल। ओके, यहाँ फूड का ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। तो जो जाइलम वेसल है और फ्लोएम वेसल में डिफरेंस क्या बना हुआ है? देखो, जाइलम वेसल में वाटर
मॉलिक्यूल जो ट्रांसलोकेट कर रहा है, मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में खाली फ्रॉम डाउन टू अप। लेकिन यहाँ फ्लोइंग वेसल में जो आपके फूड मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो टू वे है, जो मैं बता रहा टू वे। कुछ फूड मॉलिक्यूल डाउन जा रहे होंगे, कुछ फूड मॉलिक्यूल अप भी जा सकते हैं। तो टू वे डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड मॉलिक्यूल का इन फ्लोइंग के वेस्कुलर बंडल में, और जाइलम वेस्कुलर बंडल में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड होता है, या मिनरल्स एंड वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इस वाले ट्यूब में इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, इस वाले सेक्शन में आपको मिलेगा कुछ, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू का कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो हो रहा है, यहां देखो जरा, ये हमारे पास अगर देखें ये पर्टिकुलर सी ट्यूब्स है, राइट, सी ट्यूब है, ये वाली कंपेनियन सेल है, ये वाली कौन सी है, कंपेनियन सेल है, जो फ्लोएम का एक कंपोनेंट होता है, दिस इज कंपेनियन सेल, राइट, लाइक दिस। ये हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये वाली कौन सी सेल है, फ्लोएम की पैरेन्काइमा सेल है, यस। 1 सेकंड, 1 डाउट, यस सर, देयर विल बी एनी होमवर्क टुडे, यस कबीर आज का होमवर्क हम अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हम पहले होमवर्क करते हैं, फिर आगे बढ़ना हो गया टाइम पर, हो गया बच्चों, है ना। तो आज ऐसा करना बच्चों, सभी वेट सभी एक काम करना आज कि जाइलम, वेसल्स, जाइलम के कंपोनेंट, फ्लोएम के कंपोनेंट्स, राइट, क्या पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इतना लर्न कर लेना। और इसका जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड मैं आपको पोस्ट करवाता हूं, ठीक है, पोस्ट करते हैं, ठीक। तो इतना याद रखना, इतना पॉइंट आप कर लेना ढंग से, फिर हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों, एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट यू कैन आस्क। यस, इजी, कूल, चलो फिर चलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, आप रिवाइज करना और डाउट्स आते हैं तो पूछना, ठीक है बच्चों, बाय बाय।